जब एक बच्चा ग्रोइंग एज में है तो उसका एक जो डे है उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पैक्ड होने चाहिए। आंवला खा जा रहे हैं ना, ये काफ़ी बच्चे नहीं खाते हैं। ये जो आंवला कैंडी खा लेते हैं क्योंकि मीठी होती है। बहुत से बच्चों को ना ग्रोइंग पेन्स कहते हैं उसको, या Yes. फिर उसको मतलब कि वो थक कर बोन्स में पेन हो रहा है। आई रियली डोंट नो डेली डाइट में क्या ऐसा होना चाहिए कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए और क्या करना चाहिए। कड़ी पत्ते का पाउडर है या मोरिंगा लीव्स का पाउडर है, ये सारी चीज़ें क्या बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। व्हाट आर द फूड्स और डाइट थिंग्स यू वुड रेकमेंड। देसी घी। आपको लग रहा है बच्चा थोड़ा सा लथार्जिक हो चुका है, फोकस नहीं कर पा रहा, इट कुड बी रिलेटेड टू गट। तो सबसे पहली चीज, Hi, welcome to the Swago Show. And today we have come with a lot of excitement and I think nutrition packed wala value, which we always, as mothers, look forward to. Because we always say कि Swago में हम we are working upon kids to make them alpha leaders. We're working on the skills to make them mentally strong, to make them confident, एंड इन सब चीज़ों के लिए जो बेसिक चीज़ है दैट इज़ दे शुड हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी एंड वेरी हेल्दी माइंड एंड द ones who are raising them, the parents, they should also be really healthy with very happy mind. So today on my sets we have dietitian and nutritionist Miss Anvita Chatwal, and she is into this from last 15 years now, and I know her from last decade. And why I always relate her with the confidence, because इतने सारे लोग जो इनके you know they have, to whom she has touched, I think they have grown, they've come out confidently, and that's the beautiful gift you could ever give to people. It's like, you know, whosoever she touches, they go out with wings, I guess, with that happiness. And so I couldn't think anybody better than her. So over to you, Miss Anvita. hi Welcome to dear, the how are show. you? Thank you so much for inviting me here. It's a pleasure. Yeah, it's like हम जो स्वैगो में करना चाह रहे हैं दैट इज़ लाइक इंस्टिलिंग कॉन्फिडेंस एंड पर्सनालिटी टू द किड्स एंड द पेरेंट्स। एंड इट्स द फर्स्ट शो जो जिसमें हम स्वैगो से रिलेट करके वी वी आर कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट एंड कॉन्फिडेंस। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं बिकॉज ऑफ देयर डाइट, पुअर the way they look. So I think you touch them and then they are like, they are like super, I think वही जो confidence है ना वो अंदर से आता है. Of course, I mean, it's something like the clothes we wear and something like the body that we are talking about. So, when people go through a good diet, especially when you come to me, it's not just about weight loss, weight gain, but it's all about nourishment. Yes. Giving yourself that confidence with the food, creating a good relationship with food. Exactly. That is what my important. whole aim is. And thankfully, Touchwood, that's what I'm happy about. That when they go, they are happy. And the best thing I would like to share over here, that when my clients leave my clinic, their relationship with food is so good that having I would say, a cheat meal is actually not important for them anymore, because That's they really start to important. value the Yes. homemade food, because Exactly. they can see that change in their body. Beautiful. Because I think the body demands the way it's what's inside, you know. वो बाहर का भी तब डिमांड करती है when the things are not good inside, right? Yes. So we'll come to that. So सबसे पहली चीज़, जब एक बच्चा ग्रोइंग एज में है ना, लेट्स से 5 years ऑनवर्ड्स भी, उससे पहले तो उसका डाइट भी थोड़ा मिनिमलिस्टिक होता है. सो मेनली जब वो पूरी रोटी सब्जी होता है ना वो 4+ में और वो खाने शुरू हो जाता है. सो ऐसे में ताकि एक जो बच्चा है हम कहें कि हमारे एज अ मदर मैंने अपना पूरा बेस्ट न्यूट्रिशन दिया एक बच्चे को, राइट? तो उसका एक जो डे है, एक डेली डे है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पैक्ड होने चाहिए इन दैट उस बच्चे की लाइफ में. Nutrition actually a बहुत important role play करता है in every child, and don't just consider it for the body, consider it for the mental health also, for the activity level also. So what I would say in very simple lines,
कि आपका बच्चा जब स्कूल जाने लगे, यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा कभी भी घर से बाहर निकले तो खाली पेट ना निकले. बच्चे क्रैंकी होते हैं, मदर्स नहीं देती कि नहीं हम टिफ़िन दे देंगे. नेवर. जाने से पहले मे बी अ ग्लास ऑफ मिल्क, इफ़ यू कैन पुट इन 3-4 almonds into it, or maybe some banana into it, it becomes a meal for the child. Child अपनी जर्नी जो डे 1 जो स्टार्टिंग ऑफ द डे की वो स्टार्ट कर सकता है कंफर्टेबली. इन द टिफ़िन यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चे का प्रोटीन, फाइबर और कार्ब इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो, विच मीन्स कि आप कोई चिल्ला विद सम पनीर ऐड कर सकती हैं, या कोई पनीर का परांठा दे सकती हैं, और मे बी अ फ्रेंच टोस्ट विथ सम फाइबर दैट कुड बी मे बी सम वेजिटेबल या कुकम्बर स्टिक्स दे दी, साथ में थोड़ा सा हमस दे दिया, और कुछ भी नहीं तो मे बी थोड़ा सा पीनट बटर. Once the child comes back, give them some energy food. I would prefer to give them some nuts, some seeds. अगर बच्चे नहीं लेते, फिनिकी हैं, तो लड्डू बना के रख लीजिए, adding some dates, some jaggery and some seeds and as well as some nuts. उनको एक लड्डू सा बना के the first thing when they come back, वो लड्डू खिलाइए, एक छाछ पिलाइए. They will like it. Yeah. क्योंकि इतनी गर्मी होती है, you need to give them something which is pleasant and Yeah. cool. So, The lunch has to be fulfilling because that is something where you can give something heavy yeah. because metabolism सबसे fast होता है, body wants it. खिचड़ी, दाल, रोटी, पनीर, you can give this combination. घी ज़रूर ऐड करिए for good absorption of whatever minerals, vitamins you are giving. In the evening, you have to make sure before the kids go for their sports, give them a glass of milk, Yeah. add some peanut butter or maybe some nutmeg. That will Nutmeg. help them. And once they come back, give them a full-fledged meal. It could be roti with some chicken or it could be some vegetable. रात को हम दाल नहीं देंगे, दोपहर को हम बच्चे को दाल देंगे. रात को दाल नहीं देनी नहीं, चाहिए. रात को we'll give them vegetables. Okay. And please define vegetables, क्योंकि आजकल वेजिटेबल के नाम पे हम लोग दाल पनीर को ही सोचते हैं, काले चने, Yeah. राजमा. Vegetables are green vegetables which the kids need because iron उससे आपका अच्छा रहता है, magnesium आपका अच्छा रहता है. वो दीजिए. रात को सोने से पहले half a glass of milk with again some pinch of nutmeg or maybe pinch of haldi will really help them to build up their immune system. Very simple. घर में सब कुछ available है. Yeah. अगर आपके बच्चे का डे ऐसे जाएगा, I think you are stress free about their health. Wow. I mean, and that's how एक basic day हमारे बचपन में ऐसा ही होता था, right? And अब बच्चे yes picky हो गए हैं. And you're right, बच्चों के लिए सब्जीज पनीर की Yeah. सब्जी and पनीर, राजमा, काले चने, चने, this is what it is. जब मेरे Exactly. पास कोई clients आते हैं, I actually have to define yeah. that what is सब्जी. yeah. We have to get back to basics. yeah. कि जो सब्जी की दुकान में मिलता है उसको सब्जी कहा जाता है. ग्रोसरी में सब्जी नहीं मिलती. right. That's very important actually. So it is like, I mean, this is amazingly आपने जो put up किया एक डे कैसा होना चाहिए, and it's very simple and very relatable, है ना? हम सबका ऐसा ही रहता है. But yes, यहाँ कुछ मिस करते हैं बच्चे. When they say कि हम picky eater है, तो पेरेंट्स मदर्स बहुत बार ये बोलते हैं कि हमने ना आटे में ही स्पिनच का आटा गूंद लिया है, बीटरूट का आटा गूंद लिया है. So how much is this helpful? That's fine. But what I would say, the kids are evolving. Yeah. They are like, seeing the world. They are developing their taste buds. And you are going as per your child. So you are restricting that growth. Let it be. अगर बच्चा एक बार नहीं खाएगा, उसको सब्जी रोटी ही दीजिए. अपना एग्जाम्पल देखिए. जब आप छोटे थे तो आपके घर में क्या होता था? चॉइसेस नहीं होती थी. Choices नहीं होती. चॉइसेस ही बिगाड़ती हैं. Because बच्चा एक दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, 3 दिन नहीं खाएगा, चौथे दिन खाएगा. And for God's sake, they are not 60 or 70-year-old people who are Yeah. that adamant. yeah. We can mold them. And this is the age when you can mold them. Don't listen to them. You know better than them. They बिल्कुल. haven't seen the world. They don't know anything about health. They don't know anything about food. You have to develop. आपको उनका taste develop करना है. तो हर चीज़ टेबल पे होनी चाहिए. ये सब प्रॉब्लम्स क्यों आई स्वाति? क्योंकि हम सब ने एज अ फैमिली डाइनिंग टेबल पे खाना बंद कर दिया. Yes.
वरना True. जब सब लोग इकट्ठे खाना खाते थे तो घर में इतनी वैरायटी नहीं बनती थी कि किसी के लिए कुछ, बिकॉज इट इज नॉट अ होटल, इट इज Yeah. नॉट अ बुफे, बिल्कुल. राइट? तो एक सब्जी, एक दाल, रायता, सलाद, अचार, ये रखा जाता था विद रोटी. With roti. बिल्कुल सब सही. खा रहे हैं तो सबके इन्फ्लुएंस में या सबके प्रेशर में सब खा रहे हैं. बिल्कुल. कोई ये नहीं बोल पाता था कि मुझे ये खाना है, ये बना दो, बिल्कुल क्योंकि सही. खाना बन गया, And- लेड आउट है, Yeah. यही खाना है. देयर वाज नो आइडिया लाइक सेइंग कि कुछ और बना है. कुछ और बनाने वाला ऑप्शन नहीं होता था और साथ में कोई फोन या स्क्रीन नहीं होता ऑफ था. कोर्स, Yeah. ऑफ कोर्स. So सो it's like- अगर हम अब भी वो एनवायरनमेंट बना लें अपने घर में, Yeah. एटलीस्ट एक मील में बना दें, तो अगर सपोज फादर इज इन द ऑफिस, आई वुड एनकरेज द मदर, And the kids. द किड्स एंड द ग्रैंड पेरेंट्स, Parents. Yeah. Whosoever is there सब in the अगर family. इकट्ठे बैठ के Yeah. खाएं, अपने अपने कमरों में ना बैठ के खाएं, आप अपने बच्चों की फूड हैबिट बहुत बेटर कर देंगे, True. बहुत बेटर. बिल्कुल क्योंकि सही. हमारे पास भी टाइम नहीं है, हम Yeah. उनके टैंट्रम्स नहीं ले पाते, तो हम Exactly. अच्छा ये नहीं खाना, चलो वो बना दो. Yeah. डोंट डू दैट. So it's like, I want to share that personal thing. So ऐसे ही डाइनिंग पे बैठ के खाने का जो वही फ़ायदे. So my daughter, उसने कभी भिंडी नहीं खाई थी. तो and she takes pride in saying कि मैं अपने दादू पे गई हूँ. So दादू loves भिंडी. So it's like तू मेरे पे गई और तू भिंडी नहीं खा रही, तो खा के तो देख. And she tasted and she is like crazy for भिंडी now. कि हर थोड़े दिन बाद वो बना दूँ. Because वही बात है ना, जब डाइनिंग पे बैठ के खा रहे हैं and दादू is like कि यार आई एम ऑल्सो ईटिंग इट, द फूड इज यम. एंड तो साथ में ही तो वो इन्फ्लुएंस, दैट साइकोलॉजी, कि सब बोल रहे खाना बहुत स्वाद है तो स्वाद ही होगा. यस, या इट्स लाइक दैट. बिल्कुल. या सो इट एक्चुअली वर्क्स. सो ये का आपने बहुत ही ब्यूटीफुल सी रूटीन बताई है ना, आई थिंक जो हमारे बचपन से हम फॉलो करते आ रहे हैं. बट बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि बच्चा खाना, देयर इज अ लॉस ऑफ एपेटाइट, और वी नोटिस्ड कि जब बच्चे की एपेटाइट कम है भी, उसके मूड स्विंग्स भी ज़्यादा है और Yes. उसके टैंट्रम्स थ्रोइंग भी ज़्यादा है. तो आई एम श्योर इट्स रिलेटेड टू द फूड एज वेल. सो इसमें हाउ डू यू से कि अगर बच्चा एक ग्रोइंग एज में है और वो खाना नहीं खा रहा है और वो मूड स्विंग्स है, टैंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न एंड देन हाउ बेसिकली वी कैन वर्क अपॉन इट. See, there are various reasons why the child can be irritable. उसका मूड हमेशा नहीं सही रहता. सबसे पहला lack of sleep. अगर बच्चे की नींद नहीं पूरी हो रही, this is one of the major concerns. Second is physical activity. अगर बच्चा ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं होती, हर जगह ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं जाता, द चाइल्ड इज लेस एक्टिव. एंड थर्ड एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज deficiency of few vitamins. It could be iron, it could be zinc, it could be B12. इनमें से किसी की भी अगर deficiency है तो बच्चा आपका lazy हो सकता है, irritable हो सकता है. Okay. And of course the gut health. right. अगर वो gut health अच्छी नहीं है, long gaps हो रहे हैं खाने में, inflammation हो गई है gut में, there is a vagus nerve जो Right. communication करता है आपके brain और आपके gut के साथ. Right. So अगर वहाँ डिस्टर्बेंस है तो डायरेक्टली आपके ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग राइट इन योर गट. right. तो आपका सेरोटोनियन हार्मोन नहीं निकलता जो आपको हैप्पी करता है, Right. रिलैक्स करता है, वो नहीं होता. सो एज अ डाइटिशियन माय सजेशन टू ऑल द मदर्स कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से पहले दही में थोड़ा सा जैगरी मिक्स करके आप डालिए, क्योंकि दही वर्क्स लाइक अ प्रोबायोटिक, जैगरी वर्क्स लाइक एन आयरन सप्लीमेंट. तो वो बच्चे की एक तो एनर्जी लेवल्स को स्टेबली बढ़ाएगा और बिल्कुल ही जुप नीचे नहीं लेकर आएगा. बिल्कुल. तो इंसुलिन आपकी अप डाउन ज़्यादा नहीं होएगी, स्टेबिलिटी रहेगी. एंड ऑफ कोर्स स्कूल में नट्स एंड सीड्स ज़रूर भेजिए ताकि वो आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे रखें. Focus on green leafy vegetables, which are a major source of iron. But again, iron will only get absorbed जब आप उसमें थोड़ा सा नींबू डाल देंगी. जैसे अगर पालक की सब्जी बनाई है तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए उसमें. बच्चों को आप कोई भी हरी सब्जी दे रहे हैं, साथ में एक आंवला जिसको हम अपना सरसों के तेल में तड़का मार के उसका अचार साथ में रखिए.
ताकि दैट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. तो जो भी आप आयरन खा रहे हैं साथ में अगर आप आंवले का अचार खा लेंगे या आंवले की चटनी खा लेंगे तो वो एक विटामिन सी देगा और बच्चे की एब्जॉर्प्शन आयरन की काफ़ी अच्छी हो जाएगी. Okay. एंड येस जहाँ पे जिंक की बात आ रही है तो वहाँ पे हमारे सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स, हमारे नट्स ये सब काम करते हैं. बच्चे अगर ऐसे नहीं खाते तो उनको ग्राइंड करके उनकी परोंठी में डाल दीजिए, उनकी Yeah. दाल में डाल दीजिए, उनकी सब्जी के ऊपर डाल दीजिए, उनको पता भी नहीं चलेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा. एग्जैक्टली. मैं आपसे ना यही पूछने वाली थी कि जैसे ये आंवला का अचार है ना, ये काफ़ी बच्चे नहीं खाते हैं. यस, सो इट्स लाइक कैन बी ग्रेट इनटू और नीड इट इनटू देयर रोटी. यू कैन डू दैट. चटनी बना के दो थोड़ा सा गुड़ डाल के. ये जो आंवला कैंडी खा लेते हैं क्योंकि वो मीठी होती है. दैट डजंट हैव एनीथिंग एट ऑल. नो Yeah. न्यूट्रिशनल वैल्यू और मीठा बहुत ज़्यादा होता Yeah. है. इट और डजंट आंवले का रियली वर्क. मुरब्बा. आंवले का मुरब्बा यस, बट देन अगेन उसमें मीठा मीठा बहुत कंटेंट है. ज़्यादा है, सोडियम कंटेंट ज़्यादा है क्योंकि उसको प्रिजर्व किया जाता है बिल्कुल. तो उसमें चीनी और नमक का कंटेंट ज़्यादा और होता अगर है. उसको अच्छे से वॉश करें तब भी I'm trying everything. You can, but it is not that healthy. Healthy. इनफैक्ट एक यहाँ पे लॉजिक भी देना चाहूँगी, अगर आप आंवला पूरा लेंगे ना तो उसमें जो विटामिन सी का सोर्स है वो पूरा आपकी बॉडी में जाएगा. जहाँ पे कट के बनता है आंवला वो इवेपोरेट हो जाता है उसका विटामिन सी आपके एटमॉस्फेयर में एंड वो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं उठा पाते. आई थिंक आपने ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ लिया है. तो अब मुझे आप कुछ अच्छी आंवला के रेसिपीज़ वो बताई दो जिसमें आंवला की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी मेंटेन रहे और हम बच्चों को दे भी सके. आई थिंक आप आंवला की क्यूब्स बना के रख सकते हैं. क्यूब्स एज इन लाइक आपने आंवले का रस निकाला, उसको मतलब मिक्सी में चर्न करके Yeah, and जी. उसका अच्छा आपका थिक सा बन जाएगा स्मूदी काइंड. राइट. और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए, थोड़ी सी Okay. हल्दी डाल दीजिए और उसको जो आइस क्यूब्स होती हैं हमारी उसके अंदर डाल के फ्रिज में स्टोर कर दीजिए. जी. सो दैट विल ऑलवेज वर्क. जब बच्चे आपके आए तो बस पानी में आपने वो डालना है, मे बी लिटिल बिट ऑफ शुगर, और वो काइंड ऑफ आपका नींबू पानी, आंवले का पानी बन जाएगा. तो वो बच्चे पी पाते हैं, Of खट्टा नहीं course. होता वो. उसमें थोड़ा सा नमक डालें, थोड़ा सा जीरा डालें भून के. दैट रियली वर्क्स ओह. एंड So इट बिकम्स लाइक अ interesting. नींबू पानी. बच्चों को नहीं पता कि उसके अंदर आंवला गया है कि नींबू गया है. ओके. सो दे कैन डू दैट. द बेस्ट इज व्हाट यू कैन डू इज आंवले की चटनी बना लीजिए, उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं आप. एंड किड्स रियली लाइक इट. अदरवाइज ऑफ चटनी कोर्स की रेसिपी बताओगे? कड़ी पत्ता, आंवला, यू कैन ऐड सम अनियन, मस्टर्ड सीड्स, वो उसमें ऐड करके, थोड़ा सा कोकोनट वो ऐड करके अपनी. मिक्सी में कर दिया. यस, नाइस. कीप इट इन द फ्रिज, यूज इट. Until how long we can use it? 1 week. 1 week चल जाती है. Oh, this is interesting, yeah. You can give it morning evening, बच्चों को दे सकते हैं आप. Yeah. नहीं तो जो पुदीना चटनी बनाते हैं उसमें भी 2-3 आंवला डाल सकते हैं. बिल्कुल डाल सकते है ना? हैं. यस. Yeah. जो भी जिस वे में बच्चा खाता है, आई एम सो सच अ फसी मॉम. आई एम सॉरी, मैं बार बार आपको ट्वीट करे जा रही हूँ. ऐसे खिला सकते हैं कि वैसे खिला सकते हैं. बिकॉज But I think आंवला क्यूब really works. You should try that. आई वुड बच्चों डेफिनेटली, आई को हैव नहीं नेवर पता ट्राइड चलता है. इट. जब स्कूल से वापस आते हैं अच्छा. उसमें भुना जीरा डाल के, नमक डाल के. ओके. वो आप- खटास ऐसा नहीं होता कि गले नहीं में होगा लगती क्योंकि है. नमक भी डाल रहे हैं ना आप उसमें. ओके. So it will work like a नींबू पानी. And एक cube is sufficient for 1 glass. That would really help you. Wow. So basically, we learned the recipes and we learned this day, एक lifestyle जो बच्चों की डेली लाइफ में डाल सकते हैं, which can actually help their moms, कि बच्चा जो tantrums थ्रो कर रहा है, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मे बी चिड़चिड़ाहट में रह रहा है. और वो कितनी बार ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स उसी को ही बोलते हैं कि क्यों कर रहा है ऐसा. ऑन द बैक ऑफ इट, इट्स जस्ट द डाइट वी नीड टू मूव. मतलब जो उसको हमें ठीक करना है बेसिकली. देखिए छोटे बच्चे आर नेवर frustrated with their parents because they are the only thing that they have, right? It is just that they are not being able to explain themselves. Exactly. They're not being able What's to going express. inside. कहते हैं ना भूख के बच्चे रोते हैं तो इसको कुछ खिला दो, Yeah. भूख लगी होएगी, लड़ Yeah. रहे हैं, हाँ. कुछ खिला दो ठीक हो जाएगा. Hmm. So actually it is Yeah. that. या बिल्कुल. एंड जब हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं ना, तो मुझे लगता है इनकी ना नींद नहीं पूरी हुई है. Yes. ये कम सोए हैं तभी इतना ज़्यादा लड़ रहे हैं. एंड वो बच्चों ने इतना अच्छा पकड़ लिए. वो लड़ रहे होते हैं, हम रात को सोए नहीं थे. I was like, what?
इनफैक्ट इम्प्रूव देयर फिजिकल एक्टिविटी. Yeah, actually. थक के आएंगे, सनलाइट Exactly. लेंगे, नेचर के पास रहेंगे, Yeah. इट मैटर्स. सो आपने ना Calmness आती बाय है. डिफॉल्ट ही मेरे नेक्स्ट उस पे चले गए हैं, बिकॉज ये सेट कि जब बच्चे जब खेल कर आएंगे, सो बहुत से बच्चे जो स्पोर्ट्स करते हैं, है ना, एंड दे आर दिन के 2-2 घंटे खूब भाग रहे हैं, मे बी वो कोई भी स्पोर्ट है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, डांसिंग है, व्हाट्सएवर. सो बहुत बार ये ऐसा होता है कि बच्चे जब आते हैं ना थक कर, दे आर लाइक कि बस अब हम गिर जाएंगे, अब हमें मत बोलो. सो वन, आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन कि वो बिल्कुल ही अपना बॉडी से ऐसा फील कर रहे हैं कि अब उसमें नहीं, हम यू नॉट दैट फीलिंग, हम बिल्कुल भी जान नहीं बची है. सेकंड, बहुत से बच्चों को ना ग्रोइंग पेन्स कहते हैं उसको, या Yes. फिर उसको मतलब कि वो थक कर बोन्स में पेन हो रहा है. आई रियली डोंट नो, आई वांट टू डिस्कस इट विद यू बेसिकली, कि बच्चों के ना पेन्स होती हैं रात को कि मम्मा आज हम बहुत खेले, मेरी टांगें दुख रही हैं. रात को भी उठते हैं मेरे को स्कूल में फुल बॉडी एक होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है. सो ऑल दोज किड्स जो बहुत ही स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या फिजिकली एक्टिव है, उनकी डाइट में क्या स्पेशल होना चाहिए? So very firstly, we should know कि why is this happening. Yeah. This should be a cause because of maybe there's low protein in the diet or low iron, या फिर हाइड्रेशन नहीं मिल रही बच्चे को, Yeah. अगेन स्लीप नहीं मिल रही बच्चे को. तो दो चीज़ें एज अ मदर आपको करनी है. वेरी फर्स्ट, बिफोर द चाइल्ड गोज टू प्ले, यू हैव टू मेक श्योर कि बच्चा कुछ हेल्दी खा के जाए. सो ऑप्शंस, Yeah. आप बनाना बच्चे को दे सकते हैं, डेट एंड साथ में कोई नट्स दे सकते हैं, या फिर देसी, थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें थोड़ी सी जैगरी डाली और एक रोटी खिला दी. इट रियली वर्क्स. ओके. नहीं तो फिर सत्तू ड्रिंक, वो आपने बच्चे को पिला दी. लस्सी में डालकर भी रह सकते हैं. लस्सी में या फिर पानी में भी अलग से बन जाती है, या सिंपल नींबू पानी. Okay. यू हैव टू मेक श्योर कि इन ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ बिफोर द चाइल्ड गोज ही नीड्स टू हैव. एंड सेकेंड इज व्हेन द चाइल्ड कम्स बैक, Yeah. व्हाट वुड यू गिव? दूध, उसमें या तो आप हल्दी डाल दीजिए या प्लेन दूध दे दीजिए. ओके. अदरवाइज 2 अंडे का बॉइल्ड ऑमलेट, वट एवर द चाइल्ड लाइक्स, वो दीजिए. नहीं तो फिर पनीर थोड़ा सा सौते करके दे दीजिए. ओके. अदरवाइज एक थोड़ा सा खिचड़ी बनाकर देसी घी डालकर वो दे दीजिए बच्चे को. एंड द लास्ट कुड बी थोड़ा सा दही और उसमें थोड़ी सी जैगरी डाल के वो बच्चे को दे दीजिए. सो ये प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, ये मील्स अगर आप ऐड करेंगे, आई एम श्योर बच्चे की थकावट सही रहेगी. या फिर मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी कि जब बच्चे आते हैं तो उनको आप ड्राई फ्रूट, गुड़, डेट की एक लड्डू सा बनाकर वो खिला दीजिए nice. फॉर इंस्टेंट एनर्जी. सो दीज थिंग्स इफ यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, थिंग्स विल बी मच मच बेटर. वाओ. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. एंड ऑल्सो मेरे को एक और चीज़ पूछनी थी, जो दूध होता है उसका टाइमिंग क्या रहना चाहिए? बिकॉज अगर खेलने से पहले दूध देते हैं तो कंप्लेन करते हैं कि हमारा पेट दर्द होता है, फिर दे लाइक कि, और वापस या सोने के टाइम देना चाहिए. सो गिव मी सम राइट टाइमिंग्स. Two times. 2 times a day. One is before going to the school, but don't give them plain milk. Yeah. Add something in it. Okay. Plain milk doesn't have anything. Yeah. You have to add in some fruit. जैसे मे बी अभी मैंगो का टाइम चल रहा है, थोड़ा मैंगो डाल दिया, बनाना डाल दिया, डेट डाल दिया, बादाम डाल दिए, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक बना दीजिए. या फिर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा नटमेग डाल सकते हैं. दूसरा, शाम को अगर बच्चा शाम को नहीं लेता तो रात को अगर बच्चों को जैसे आपने कहा बॉडी पेन्स रहती हैं, तो आधा ग्लास दूध में थोड़ा सा नटमेग डाल देंगी तो उससे उसकी बॉडी पेन्स भी रिलीफ होंगी और बच्चे को नींद भी आएगी. This is very So important. 2 times a day. It could either be morning, evening or morning And and night. night. रात को मे बी हल्दी वाला दूध हो गया. हल्दी दूध, नटमेग दूध. बेसन दूध रात को दे No, सकते that's very heavy. हैं? That's very heavy, no? Yeah, that's only I think I used to give जब उसका जब that nose is blocked or something like that, है ना? Yeah, and maybe sometimes if you feel that कि child का बहुत ज़्यादा workout हो रहा है, once the child comes back, then maybe you can give. तब भी दे सकते हैं. But Okay. sometimes, not every time. Not every day. It's not मतलब heavy हो जाएगा. Yes. गट के लिए, उसके right? बाद फिर dinner नहीं करेगा ना बच्चा. Exactly. Then you will struggle for dinner. Yeah. Because the child will be all filled up. Yeah. Basically यही हो रहा था कि जब वापस आते हैं ना, it's around 8ish. तो उनको होता है कि
या होता है कि हमें कि डिनर ही करवा ऑफ दो कोर्स एंड सोते एंड हुए दैट मेक्स सेंस। अगर बच्चा 8 बजे आ रहा है, आप इमीडिएटली बच्चे को अगर आप डिनर सर्व कर दें और उसमें आपके सारे कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन सब कुछ उसके अंदर आ रहा है, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड हाउ अबाउट गिविंग रात को पनीर का पराठा? पनीर पराठा कैन वर्क वेल इफ द चाइल्ड इज वर्किंग आउट। अगर बच्चा इतना थक के आ रहा है, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ब्स एंड प्रोटीन्स, राइट, सो येस ऑफ कोर्स यू कैन गिव दैट। मुझे ये जानना था कि रात को पनीर देना It is ऐसा तो fine इट्स because फाइन? yeah, maybe it could be heavy for us but not for kids who are very active. ओके, But yes, जो बच्चे सारा दिन बैठे बैठे हुए रहे। हैं उनके लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगी, पर अगर आपके बच्चे 2 घंटे बाहर घूम के आ रहे हैं, खेल के आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड हैं, उनके लिए इट वर्क्स। इनके लिए इट्स गुड पनीर ऑल्सो एंड इवन दाल दाल इज ऑलवेज प्रेफरेबल इन इन द द लंच लंच। बिकॉज उसका एब्जॉर्प्शन टाइम ज़्यादा है, ओके, सो वो फिर एसिडिटी ब्लोटिंग बॉडी में इंक्रीज करता है। सो आई विल Okay. ऑलवेज प्रेफर कि दाल आप हमेशा लंचेस के लिए रखिए, रात के लिए मत रखिए, नाइस फॉर एवरीबडी इन द फैमिली इन फैक्ट। राइट। तो आई थिंक हमारा ना वही कहना लिंक टू लिंक बन रहा है बहुत ब्यूटिफुली। सो अब बिकॉज अब बच्चा प्रोटीन भी खा रहा है एंड वही हम कई बार कॉम्बिनेशंस जो है वो ऊपर नीचे करते हैं एंड देन बहुत बार बच्चों में भी और हम बड़ों में भी गट इश्यूज रहते हैं एंड कई बार वो कैन बी इट्स इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिपेशन है या गैस हो रहा है, सो एसिडिटी ज़्यादा हो रही है। सो इन सब के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट बेसिकली कि डेली डाइट में क्या ऐसा होना चाहिए कि आप क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो वो नहीं होनी चाहिए और क्या करना चाहिए सो दैट योर गट हेल्थ इज़ बेटर? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा कि बच्चों में अगर ब्लोटिंग, एसिडिटी बच्चे समझा नहीं पाते, Exactly. सो यू हैव टू टेक द सिग्नल्स। अगर आपका बच्चा काफ़ी देर पॉटी सीट में बैठा रहता है, जैसे कि वो किसी ट्रेन की वेट कर रहा है या कभी कभी कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पेट में दर्द है, आपको लग रहा है बच्चा थोड़ा सा लथार्जिक हो चुका है, फोकस नहीं कर पा रहा, इट कुड बी रिलेटेड टू गट। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए कि बच्चों का तड़का, जीरा, अजवैन और हल्दी, ये 3 चीज़ों का तड़का हर एक सब्ज़ी में, चावल बना रहे हैं उसमें ये 3 एलिमेंट्स आपके ज़रूर इंक्लूडेड होने चाहिए। तो हर मील की तड़के में हम अजवाइन, जीरा, अजवैन और हल्दी, ओके, ये तीनों चीज़ें आपने हमेशा ऐड करनी है। नाइस। गिव देम कोकोनट वाटर फॉर द कूलिंग डाउन इफेक्ट एंड जीरे का पानी, पानी में रेजन्स डालकर एक कटोरी में वो पानी भी पिलाइए उनको और वो रेजन्स भी खिला दीजिए। रेजन्स कौन से वाले? ब्लैक रेजन्स या इवन ग्रीन अगर हैं दैट इज़ ऑल्सो फाइन। अगर बच्चे को ज़्यादा मीठा लगता है तो ग्रीन वाले भी आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, खिचड़ी स्पेशली मेड इन देसी घी, राइट, ये आपने यूज़ करना है। फर्मेंटेड फूड जैसे चिल्ला जो फर्मेंट हुआ है, इडली, डोसा, फर्मेंटेशन में आप दाल को फर्मेंट कर सकते हैं, आप मिलेट्स को फर्मेंट कर सकते हैं, तो उससे उनका गट बेटर होएगा। फर्मेंटेशन के लिए आप क्या रेकमेंड करते हो? कितने आवर्स के लिए करनी चाहिए और क्या क्या डाल के करना चाहिए? अगर आप फर्मेंट अपना 12 घंटे भी कर लेंगी, इट गेट्स बेटर। इट गेट्स बेटर, Yes. बिकॉज बहुत बार ना जस्ट क्विक करने के लिए ना Quick. यू जनरली पुट बेकिंग सोडा या इनो डाल देते हैं। दैट इज नॉट फर्मेंटेशन। इट्स एक्चुअली नॉट कॉल्ड फर्मेंटेड। वही हमने वो तो इंस्टेंट वाला काम किया जो हम Exactly. लोग करते हैं, Yeah. सो दैट इज नॉट फर्मेंटेशन। इफ यू कीप, I in fact tell some of my clients who are abroad, I tell them to create a batter and just keep it in the fridge and that stays for at least 4-5 days. तो उसी में वो आटा गूंद के रोटी बना सकते हैं, वो रोटी भी फर्मेंटेड बन जाएगी। उसी का डोसा बना दिया, उसी का चिल्ला बना दिया, because they don't have that much of time. Exactly. And but they get the good elements, the good bacteria which Nice. works for their gut. एंड इसमें जैसे आपने मिलेट्स मेंशन किए, दाल में भी कोई पर्टिकुलर दाल या एनी सॉर्ट ऑफ? आप मूंग दाल, मसूर दाल, Yeah. बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट, इन सब को यूज़ कर सकते हैं। नाइस। एंड एप्पल को स्टू करके थोड़ा सा उसमें सिनेमन डाल के, इट वर्क्स वेरी गुड फॉर गट। एंड उसको एज इट इज बच्चों के लिए अच्छी तरह मैश करके बच्चों को खिलाइए, दे विल लाइक इट। नाइस। सो दीज थिंग्स इफ़ यू टेक केयर, तो आपके बच्चे की एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब रिलीव होएगी। And this is amazing because
आई हैव नेवर थॉट कि हम उसको एज एन आटे में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने दाल को फर्मेंट करके, और फर्मेंट में जैसे आपने दाल को पीसा, उसमें वाटर डाला, मे बी कुछ कर्ड डाली, एंड यू जस्ट उसको और वो बैटर बना के बैटर अपना बना रख के दीजिए फ्रिज बस में। फ्रिज में रख दिया, जब आप रोटी बना रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें से लिया, उसके उसमें साथ आटा गूंद आटा दिया, गूंदा। क्योंकि खमीर कितनी वाली बार, रोटी हम लोग, yeah, इफ यू रिमेम्बर। yeah. I mean, this is for me, it's a groundbreaking, honestly, because I think मैं अपनी डॉटर के लिए गट इश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, and this had never come across in मतलब to me earlier. This is very nice, and yeah, ये छोटे छोटे tweaks है, and yes, इनका फोकस, इनका डेली बिहेवियर Yes. बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि वो इंटरनली कैसे फील कर रहे हैं, और वो हम जान नहीं पाते, और हम बच्चों को ही उल्टा दोष देते हैं. या वही ना, You मतलब know? बच्चे आपको ये चीज़ नहीं बता पाएंगे, Exactly. आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं, Exactly. how much time they are putting in their washrooms, Yeah. or sometimes they are complaining or they are getting irritated or Acidity हो रहा है. lethargicness. These could be the symptoms, and if you just improve their diet, हम कौन सा कोई मेडिसिन दे रहे हैं, Exactly. डाइट ही चेंज कर रहे हैं, थोड़ी सी, Yeah. थोड़े से चेंजेस Right. कहीं भी नुकसान नहीं करेंगे. ब्यूटीफुल. आई मीन, हम कितनी बार ना हम बच्चों पे कहते हैं यार ये इसका पढ़ने में फोकस नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं है, एंड ऑल द टाइम देर सो क्रैंकी, हर छोटी सी बात पे चिढ़ जाता है. हम उसके बिल्कुल इमोशनल बिहेवियर को अलग कर देते हैं और उसकी बॉडी को अलग कर देते हैं, Absolutely. है ना. एंड दिस इज सो इम्पोर्टेंट, एंड कितने छोटे छोटे से चेंजेस है, एंड आई एम गोना डू इट फॉर दिस वन फॉर श्योर, बिकॉज माई डॉटर, वो तो बिल्कुल भी कर्ड देख भी नहीं सकती. अगर मैं अपने एक बेटे को कर्ड खिला रही हूँ तो उस हाथ से मेरे से खाना भी नहीं खाएगी, बिकॉज मुझे कर्ड अच्छा. की स्मेल आ रही है. कई लोगों को होता है उसको दही वो से. वाला दही Yes. वाला इशू है, तो मैं उसको वही इडली में, उसके आटे में कर्ड डालती रहती हूँ हर but जगह. dahi is actually a savior for any ऑल gut गट issue. इश्यूज वही है, और उसी को ही गट इश्यूज लस्सी भी आते नहीं हैं. पीती. उसको स्मेल कुछ तो है कर्ड की स्मेल से. इट्स नॉट फ्रॉम टुडे. आई थिंक वो 6 months का बच्चे को तुम फर्स्ट चीज़ क्या खिलाते हो, तुम सबसे पहले दही खिलाते हो. उसको उसी दिन से प्रॉब्लम थी, कुछ तो जीन्स मेरे को आया, आई डोंट नो. एंड तो उसने मुझे इडली बनाते हुए देख लिया कि इसमें दही डल रही. ओहो, ये तो मेरी फेवरेट, इसमें इडली डालती, इसमें दही डालती. लाइक हेलो, मुझे आज तक नहीं पता था. So anyhow, that's secondary. So with this gut thing, है ना, आपने मेरे को बहुत ही ब्यूटीफुली वो सारे एक रेसिपीज़ भी और आइडियाज़ दिए हैं कि किस तरह से इम्प्रूव हो सकती है. बहुत बार बच्चों की ट्रबल्ड स्लीप भी होती है, ठीक है ना. इज़ इट ऑल्सो रिलेटेड टू गट, द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना. एंड सेकेंड, अगर बच्चे की ट्रबल्ड स्लीप है तो व्हाट एग्जैक्टली अ मदर वी शुड डू एज फार डाइट इज़ कंसर्न. पहली बात तो मदर को ये बात समझने की ज़रूरत है कि बच्चे की रात की स्लीप, सिर्फ आप अगर कहें कि मैं स्टोरी सुना रही हूँ बच्चे को या एक ललाबाई सुना रही हूँ और मेरा बच्चा सो जाएगा, दैट्स नॉट द होल थिंग. बच्चे की रात की नींद डिपेंड्स अपॉन द डिनर व्हाट इज़ सर्व टू द चाइल्ड. राइट. अगर रात को बच्चा कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, आइसक्रीम खा के सो रहा है तो सपने में भी ट्रैपलिन में कूदता रहेगा और आपको भी सोने नहीं देगा. यस. अगर आप अपने बच्चे को चिप्स, हाई सोडियम वाले फूड दे रही हैं, बाहर का खाना जो मेजरली दैट्स वेरी हाई इन सोडियम, बर्गर्स, पिज्ज़ाज, वो बच्चे को डिहाइड्रेट करेगा, रात को बच्चा सोते हुए. अनईजी होएगा सोते हुए. थर्ड है कि अगर आप बहुत हैवी फूड दे रही हैं देन द स्टमक विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट इट. बच्चा इधर उधर राइट लेफ्ट पूरे बेड पे होता है ना, मैं घूमता रहता है बच्चा पूरे बेड पे. दैट्स मे बी बिकॉज हम बहुत हैवी फूड बच्चे को रात को खिला रहे हैं. ओके. सो द सोल्यूशन, एक तो जब बच्चा रात को सोए, आधा ग्लास दूध, आप कहेंगे हमेशा मैं नटमेग बोलती रहती हूँ पर थोड़ा सा नटमेग डालिए, थोड़ा सा गुलकंद डाल के वो बच्चे को दीजिए रात को सोने से पहले. डिनर में आप पनीर दे सकती हैं. पनीर में कामिंग एजेंट्स होते हैं, सेरोटोनिन हार्मोन होता है, बहुत हेल्प करता है. रात को जैसे मैंने कहा दालें मत दीजिए, लाइट वेजिटेबल्स, रोटी दे दीजिए. राइस देना चाहते हैं दे सकते हैं, बट डोंट अकम्पनी इट विद दाल. ओके. राइस पनीर बना दिया, एग राइस बना दिया, ये दिया आपने. या बेस्ट इज ओट पॉरेज.
थोड़ा सा उसमें सिनेमन डाल दिया, दैट वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर डिनर्स. मसाला ओट्स या वेजिटेबल दलिया भी Vegetables, yes, you can add, but don't go for the packed ones. No, obviously. घर में बनाइए. ये तो एंड सोने से पहले बच्चों को एप्पल या चेरीज दीजिए. अच्छा, सोने से पहले एप्पल दे सकते हैं? Yeah. Wow. You know what? Because this apple and cherries, they again have this melatonin hormone which relaxes. Okay. So it's quite good. And I think ये चीज़ें अगर आप change करेंगे तो the Right. kid will be sleeping well. बिकॉज माई सन वो बहुत बारी रात को उठता है और कितनी बार ऐसा होता है मुझे भूख सी लग रही है एंड ऑलवेज वो फिक्स है, उसको भूख लगेगी वो उठेगा और सिर्फ एप्पल ही खाता है और एप्पल खा के वो सो जाता है. सो ऑलवेज हैड दिस क्वेश्चन कि कहीं इतनी रात को लेट सोते हुए इतना फाइबर वो खा रहा है पता नहीं. That gives you melatonin. ओके, सो टुडे आई गॉट द It works आंसर. good. To all my clients, I've always suggested रात को डिनर के बाद अगर आपको भूख लग नींद रही है. नहीं या भूख लग रही है, Yeah. go for these 4 fruits: apple, papaya, guava and pear. क्योंकि ये सिट्रस नहीं होते तो ये आपके गट को डिस्टर्ब नहीं करते, ट्रू दैट. एक फुलनेस लाते हैं, थोड़ा फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, वाटर रिटेन नहीं होता है, एंड इट वर्क्स लाइक फाइबर जो आपको सुबह अपने स्टूल को पास करने में भी ईजीनेस देता है. वाओ. आई मीन कैसे बच्चों की बॉडी ही अपने आप उनको सिग्नल्स देती है ना. यू ऑलवेज आस्क फॉर एप्पल और गुआवा कि मुझे इन दोनों में से कुछ भी है तो दे दो, मैं तभी सो पाऊंगा. राइट. या वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. नो, वो कहते हैं ना गट की सुनो. या आजकल बेचारा गट ही परेशान है तो क्या सुनोगे गट की. नाइसली पुट. या उसको इतना परेशान करके रखा है, वो हमें क्या बताएगा. But if your gut is healthy, gut सही बोलता है. गट सही बोलता है. सी, वही मैं कह रही हूँ. एंड मैं मुझे हमेशा देते होता था कि यार इतनी रात को आई डोंट नो, कई बार मखानास दे देती हूँ उसको, बट कि आई डोंट नो वो मतलब हैवी तो नहीं होता. बट देन टुडे आई गॉट द आंसर. थैंक यू फॉर दिस. ये बाय डिफ़ॉल्ट आया. बट देन या एंड बिकॉज अगर बच्चा बहुत घूम रहा है बेड पर तो इट कैन ऑल्सो बी Of रीजन course, की yes. ओह That whatever you are giving him for dinner is probably not right. उसको वो calmingness नहीं आ रहा है. रात को हमें उसे energy giving food नहीं देना है, उसको calming agents देना है राइट. जो उसको हेल्प करे. इमेजिन वही. एंड एवरी मतलब मैं बोर हो चुकी हूँ. मैंने उनको पता है क्या मैंने कहा, तुम्हारा टम्मी कहेगा. मैंने कहा पनीर की पराठा भी ना बोर हो गया तुम्हारी टम्मी में जा जाके. हर रोज पनीर का पराठा कौन खाता है. No, that works. That अब really वही works. अच्छा, हम लोग सबको कहते हैं कि मैग्नीशियम लो रात को सोने से पहले. But did you know that banana itself has magnesium and that also helps for good sleep. तो हम रात को बनाना दे सकते हैं. You can maybe just add in the porridge ना. थोड़ा सा बनाना Okay, कट maybe करके डाल दिया. 7-ish के round दे Yes, दिया. yes, you can give that. है ना. So that also works. ओह वाओ, पोटेशियम, मैग्नीशियम उसमें आ जाता है. They're natural agents. ब्यूटीफुल. नो, हम ऐसे ही कहते हैं सप्लीमेंट्स खाओ, मेडिसिन खाओ. इट इज दैट सिंपल एक्चुअली. या सो ये हो गया कि ना ट्रबल्ड स्लीप है, बच्चा या तो उठ रहा है. अब देयर इज़ अनदर थिंग हम बहुत कॉमनली नोटिस करते हैं बच्चों में, दैट इज़ उनको शुगर क्रेविंग्स बहुत होती हैं. मतलब स्पेशली व्हेन दे कम फ्रॉम स्कूल, कुछ मीठा है एंड देन शाम को थोड़ी देर बाद कुछ मीठा दे दो. क्या है मीठे में, कोई चॉकलेट है या फिर वही रात को देन आइसक्रीम खिलाने ले चलो. Yes. बार बार उनको एक मीठे की क्रेविंग होती है. सो व्हाट इज़ दैट सिग्नलिंग एज अ पेरेंट? मुझे उससे सिग्नल क्या लेना चाहिए? वन. Right. सेकेंड, ऑल्टरनेटिव्स भी यू नो. सो See, सबसे पहले to all the mothers and the grandparents, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग गिल्टी मत फील करिए कि आपका बच्चा शुगर मांग रहा है और आप उसको नहीं दे रहे, तो पता नहीं आप उनके बचपन का कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट उनको जीने नहीं दे रहे. सो इफ़ यू आर सेइंग नो, इट्स ओके, बिकॉज बिलीव मी, जब आपके बच्चे आपसे शुगर मांग रहे हैं, it could be a drama, firstly. It could be a physical requirement, or it could be just long gaps in your food which makes the child do this. ओके. Very firstly, sugar has been treated as a reward, या right? बच्चा कुछ अच्छा करके आता है, दादाजी एक चॉकलेट पकड़ा देते हैं या फिर मम्मी एक लड्डू खिला देती हैं. सो दैट इज़ अ रिवॉर्ड. मीठा खा रहे हैं बिकॉज हमने कुछ अच्छा किया. Now, secondly,
द ब्लड शुगर, मे बी बच्चे ने कुछ खाया से एकदम स्पाइक की और देन एकदम ड्रॉप की, जिससे बच्चा अगेन डिमांड्स द शुगर. Okay. Third, you're giving very long gaps in between Okay. the foods. So that is the only reasons majority of the times why your bacha is asking you for the food, for the sweet. For the sweets. So अब हम क्या करेंगे? हम मना नहीं करेंगे बच्चे को, पर हम उसका एक ऑल्टरनेटिव निकालेंगे. Right. राइट हमने उसको बैड स्वीट नहीं देनी, गुड स्वीट देनी है हमने उसको. बिल्कुल. बेसन के लड्डू बना के दे दो विद ऑल द नट्स Nuts. एंड सम जैगरी. Jaggery. या फिर जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आप डेट्स, सीड्स, ये सब कुछ मिला के दे दीजिए. घर में मूंगी की दाल के लड्डू बना के दे दीजिए. Right. देन यू कैन इवन ओट्स और बनाना को मिक्स करके कुकीज़ बना दीजिए, Yeah. वो भी बच्चे ले सकते हैं. सो दीज सिंपल होम थिंग्स कैन वर्क. एंड आजकल जैसे अब गर्मियों का टाइम है तो आपने फ्रूट्स को क्यूब्स में डाल दिया, जो फिंगर क्यूब्स आती हैं उसको फ्रिज में रखा एंड वो Yeah, बच्चे को दे बिल्कुल, दिया. yeah. दे As an रियली ice cream. एन्जॉय इट. Yeah, they do. सो यू कैन डू दिस एंड ऑल्सो क्रिएट अ रूल कि अगर मीठा खाना है, जैसे आइसक्रीम खानी है, 2 घर में भी बन जाती है, बहुत सारी रेसिपीज़ हैं. Yes. बट अगर बाहर का खाना भी है तो इट विल बी वंस अ वीक. Yeah. वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट. सो इट्स वेरी सिंपल. सो बेसिकली अगर हम लेट्स से इस पे कंट्रोल नहीं करते हैं, लेट्स से हर रोज़ बच्चा मे बी कोई छोटी सी चॉकलेट खा ली है या बिस्किट खा लिया है, फिर या फिर कभी आइसक्रीम खा ली है, तो बच्चा तो ये कहते हैं मम्मा मैंने आइसक्रीम तो 1 वीक में एक ही लिया है, पर आप नोटिस करो उसने मंडे को शायद चॉकलेट खाया, हाँ. फिर ट्यूसडे को उसने बिस्किट्स खा लिया. yes, ठीक है. yes. एंड हम उसको शुगर किसी ना किसी फॉर्म में दे रहे हैं और आइसक्रीम वंस अ वीक ही दे रहे हैं. एब्सोल्युटली है ना? इट मेक वही ना. तो ये बात तो वहीं आ गई. एंड आई वुड लाइक टू से बिकॉज बहुत मदर्स ये कहती हैं कि हम तो नहीं दे रहे, घर में बाकी सब दे रहे हैं. सो इट हैज़ टू बी a whole house has to come on this Exactly, decision that it has to be once a day. Yeah. And the timings are also very important. Yeah. You know, never give your child sugar empty stomach. Right. That creates glucose spike. जब ड्रॉप करता है बच्चा, अगर आप बाद में खाना भी खिला रहे हैं तो बच्चा ज़्यादा खाएगा, ओवर ईट करेगा, या फिर उसको डिससेटिस्फैक्शन रहेगी. हमेशा पहले जब बच्चा अपना पेट भर ले उसके बाद उसको कुछ मीठा दीजिए. Right. पहली एडवांटेज ग्लूकोज स्पाइक नहीं आएंगे. दूसरा एडवांटेज बच्चा कम खाएगा मीठा क्योंकि पेट तो पहले से भरा हुआ है. बिल्कुल. सो वी जस्ट यूज दिस स्मॉल ट्रिक्स. बिल्कुल जब उठता है बच्चा उसको मीठा नहीं देना. बिल्कुल भी नहीं. एंड एनीथिंग एल्स ड्यूरिंग द डे, या अगर मीठा किसी ना किसी फॉर्म में जा रहा है उसका इम्पैक्ट क्या रहता है जनरली? मीठा तो हर चीज़ में जाता है. जैसे जब हम रोटी दे रहे हैं, उसमें जब हम लोग carbs फ्रूट भी है. दे रहे हैं, जब हम सब्जियां हैं, हर चीज़ में एक मीठे का फ्लेवर तो होता ही होता है. दैट्स ऑल नेचुरल शुगर. या. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. राइट. दैट इज ऑलरेडी गोइंग. या आई एम नॉट वरिड अबाउट कि शुगर जा रही है कि नहीं. आई एम वरिड कि अगर शाम के टाइम या मे बी फ्रेंड्स के साथ बाहर बच्चा गया है और फ्रेंड्स लेकर आए हैं, बिस्किट्स लाए हैं, कुछ लाए हैं, और वो किसी ना किसी फॉर्म में खा रहा है ना, तो व्हाट इज़ दैट रॉन्ग इम्पैक्ट इज़ हैपनिंग इन द किड्स बॉडी? उसको कहाँ तक असर करता है? देखिए अगेन डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की शुगर खा रहा है. अगर तो घर की बनी शुगर खा रहा है, मीन कुछ हेल्दी तरीके से खा रहा है, इट वुड नॉट मैटर मच. एंड क्या टाइमिंग पे खा रहा है. अदरवाइज एज सेड बिफोर, ग्लूकोज स्पाइक होएगी, बाद में जब ड्रॉप करेगी बच्चा इरिटेट हो जाएगा, वही इरिटेशन बच्चा बेसिकली. ओवर ईट करेगा, उसके या फिर कुछ और डिमांड करेगा. एंड दूसरा ऑफ कोर्स हमारी ओरल हेल्थ खराब होती है, हमारे Right. टीथ खराब होते हैं. एंड ब्रेन पे उसका जो असर रहता है. नहीं वो होता है. एंड येस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो भी हमारे डिजीजेज होते हैं दे ऑल आर फीडेड ऑन शुगर. वहीं पे ही स्ट्रेस लाना चाह रही थी बेसिकली थ्रू दिस डिस्कशन कि अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर हम कंप्लेन भी ना करें कि वो बच्चा इरिटेबल है, उसको गुस्सा ज़्यादा आ उसकी रहा है. इम्यूनिटी कम हो गई है. एग्जैक्टली. इमेजिन. दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड. सो शुगर ज़्यादा खाने से इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट आता ऑफ कोर्स यस. है ना. अच्छा कितनी बार होता है कि बच्चे को बुखार होता है एंड घर में से बोलते हैं इसको कुछ मीठा खिला दो. अगर बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो हम कहते हैं कि कुछ हाँ, I मीठा ही remember. खिला दो. हाँ. वो उसकी इम्यूनिटी और डिप कर देता है. आई स्टिल रिमेंबर वो बच्चा सिर्फ ना न्यूटेला खाता था. आई सॉ समबडी, तो वो बुखार था, कुछ नहीं खा रहा था, इसको न्यूटेला ब्रेड ही खिला दो. न्यूटेला तो इज लाइक आई मोस्टली पेरेंट्स डू दैट. है ना. यस कि चलो कुछ तो खाएगा.
कुछ तो अंदर बट जा रहा या है. कुछ तो जाएगा ना, तो Yeah. दे दो. बट नो, दैट्स नॉट द राइट डिसीजन. Yeah, I think, but उसमें मे बी बच्चे को वो ग्लूकोज वाटर दे दो, और मे बी बट देन इफ इज डिहाइड्रेटेड तब दो. तब वही, या अगर बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा हाँ है तो हाँ हाँ. हाँ, यस. बट देन बट कुछ तो खाएगा. बिलीव मी, अगर उसका एम्प्टी है स्टमक एंड द बॉडी रियली नीड्स इट, द चाइल्ड विल ईट. या, बट यू डू नेवर गिव द ऑप्शंस ऑफ जो उसको पसंद है मीठे नहीं तो में. चावल में थोड़ा सा जैगरी डालकर और थोड़ा सा देसी घी डालकर आप उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना के बच्चे को खिलाइए. बच्चे को टेस्ट भी आएगा. जो स्पेशली बच्चे बीमार होते हैं, तो दैट रियली हेल्प्स. दैट्स वेरी गुड. या, दिस इज़ लाइक इंटरेस्टिंग. मतलब वही, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा खुद का माइंड शिफ्ट है ना, ये करना. सो अब आई थिंक वही, एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू कम अपॉन वाज द इम्यूनिटी इटसेल्फ. कि अगर बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो रह रही है, और उसका सिग्नल तो ये रहता है कि वो जल्दी बीमार हो रहा है, वो सीज़न चेंज में जल्दी कैच कर रहा है, मे बी कोल्ड और सम वन और द अदर थिंग. एंड आई सीन हर 15 दिन बाद भी सी उसको वायरल फिर से हो गया है. तो ऐसा जब हो रहा है रिपीट में, बच्चे की इम्यूनिटी लो है, व्हाट आर दोज मे बी द डाइट थिंग्स जो एक बच्चे की मतलब इंक्लूड करने चाहिए, एंड व्हाट आर द डोंट्स एज वेल. यू आर राइट. अगर बच्चे रोज़ ये शिकायत लेके आ रहे हैं कि कभी पेट में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, एंड जस्ट नोटिस कि अगर आप हर 2 हफ्ते बाद अपने बच्चे को एक दिन की छुट्टी करा रहे हैं घर से, देन इट इज़ अ क्लियर इंडिकेटर कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी लो है. बिल्कुल. And we need to understand this immunity is not low because of change in season. It is wholly solely what we are making in our kitchens. And building an immunity is not a quick job, like कि हमने गमीज खा ली एंड कुछ मेडिसिन, कुछ मल्टीविटामिन्स खा लिए और हमारी इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी. नो, इम्यूनिटी का पासवर्ड इज इन योर किचन. बिल्कुल. If your kitchen is being, in the food that is being prepared is right towards the major ingredients, I think you've got the key. So very firstly, we need to make sure कि बच्चों को, as I said, ये गमीज मत दीजिए. ठीक है, ये मल्टी वाइटामिन ऐसे अगर उनको नहीं ज़रूरत तो प्लीज़ unnecessarily. These days this happens. The mothers come to me at the age kid is 5-year-old and what they say is कि I am listening this that हम लोगों का खाना full fledged नहीं है. We have to give some extra proteins, some vitamins to the kids. So what medicines can I give? So please don't do that. You will disturb their gut. You will disturb their immunity. Second is hydrate them. Right. Give them lot of water. It could be in the sense, in the means of नींबू पानी, coconut water, or maybe plain water, या कोई juices, या बेल का जूस, ये सब कुछ ऐड करिए. बिल्कुल. We have to add more of iron, zinc, vitamin C and vitamin D in their diet. Okay. That's very important. Long gaps nahi. Physical activity. Right. In Japan, there is this condition that if you're not well, the doctor prescribes you to go to a jungle to feel the nature, Right. to feel the sunlight. So that improves your immunity, Yeah. builds up your body, and you get better. बिल्कुल. So we need to do that. Increase their activity level, send them out so that they can feel the sunlight. If you see the data in our about our India, there are so many children who are now getting affected because of fatty liver, Yeah. getting diabetes, because they are always in concrete. They are Yes. not coming out. बिल्कुल. So we need to take care. Now, what all we can add in our diet, in our kids' diet, to improve their immunity? Tulsi, adrak, हल्दी. अदरक, तुलसी, हल्दी. यस, Yeah. ये तीनों चीज़ें ज़रूर ऐड करिए आप इनकी किसी भी फॉर्म में. अदरक जैसे हर तड़के में लगता है. हर तो- तरीके में अगर आप उनके लिए चाय बना रही हैं, मतलब कि थोड़ी दूध पत्ती वाली चाय, तो थोड़ा सा उसमें अदरक डाल सकती हैं आप. Okay. उनको अदरक का थोड़ा सा सिरका में डालकर अचार के Okay. फॉर्म में Right. वो आप उनको खिला सकते हैं. देन अगेन वी फोकस मोर ऑन कैरेट एंड बीट रूट. You can give that as a salad
रोटी में, चिल्ले में आप उसको अपना डो बनाकर ऐड कर सकते हैं. Right. दही, which is very very important, nuts, seeds, they can give you the benefit. Very simple things. Yeah. But the thing is कि ये रोज़ हमारे अंदर नहीं जाता है. तो क्या ये हर रोज जाना चाहिए? Of course yes. मतलब एवरी डे, इवन इफ यू नाउ फीलिंग वेल. क्योंकि हमने इम्यूनिटी बढ़ानी है. ये तो ना कि जब हम बीमार होएंगे तब हम इम्यूनिटी Yeah. के बारे में सोचेंगे. या दैट्स व्हाट आई मीन. मतलब एक होता है ना, आपने कंटिन्यूअसली मंथ और 2 months दिया एवरी डे. तो Every day, every single day of our life, because we need to have the building agents in our body in every Right. age, because the cells are growing, regenerating every single hour, every single Right. day. So you need to work on it every single day. सो अगर बच्चा जैसे स्कूल में पानी की बॉटल लेकर जाता है और उसमें मैंने एक पत्ता या 2 पत्ते तुलसी के डाल दिए, how would Infuse, that? yes, you can work it as an infused water. तुलसी Yeah. डालिए, मिंट डालिए, कड़ी पत्ता डाल दीजिए, राइट. आप थोड़ा सा खीरा डाल दीजिए, ये सब जिंजर डाल दीजिए. हम आपको ये सब जो भी infused बच्चों को waters देते ज़्यादा, हैं. Yes, yeah. yes, whatever taste they like, Like. we can do that. राइट. That really अदरवाइज helps. तुलसी, बिकॉज छोटे बच्चे अगर लेट से अभी ये छोटे हैं, टीनेजर्स नहीं हैं, उनको अभी हमने चाय नहीं इंट्रोड्यूस की, तो तुलसी किस फॉर्म में दे सकते हैं? तुलसी, अदरक और को हनी में डालकर ओके. उसको थोड़ा सा बनाकर वो दे दीजिए उनको. नींबू पानी में वो डाल नहीं, सकते नींबू पानी में नहीं, सिर्फ शहद. शहद के साथ ही जस्ट अ स्पून Yes, ऑफ इट. पहले आप तुलसी और अदरक को And- थोड़ा सा ग्राइंड कर लो, grind थोड़ा करके. पीस लो उसको, और उसमें 1 टीस्पून हनी हनी डाल के करके. उसको 1 चम्मच उनको बोलो कि ये उनको दवाई बोलो है तुम्हारी. medicine है हमारी. हाँ, जहाँ पे वो आप उनको, सॉरी टू से, पर अगर उनको वो बहुत गमीज सारे- दे सकते हैं तो उसकी जगह आप ये भी दे सकते हैं. उसमें टेस्ट भी Right. ठीक रहता है, बच्चे उसको ले लेते हैं वेरी एंड इसका इजीली. टाइमिंग क्या रहना चाहिए? इट इज़ वेरी गुड अगर आप रात को सोने से पहले दे दें, ओह. या फिर आप उनको सुबह लाइक बिफोर गोइंग टू स्कूल आफ्टर देयर अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेकफास्ट विच दे आर हैविंग, उसके बाद 1 चम्मच दे दीजिए. दैट Okay. हेल्प्स अ लॉट. इनफैक्ट ये रिजीम रखना चाहिए हमें कि जब भी हमारे तड़के लगे उसमें हमने ये जिंजर डालना ही डालना है, जिंजर, ये हल्दी डालनी ही डालनी है. कई लोग नहीं डालते, Okay. फ्लेवरिंग का इशू कि नहीं इसका फ्लेवर ख़राब हो जाएगा. Okay. पर बच्चे ना ग्रो कर रहे हैं, उनको भी फ्लेवर एक्सेप्ट करना है. तो अगर आपके घर में शुरू से ही तड़के इन सब चीज़ों के लग रहे हैं तो उनको इस तड़के की आदत हो जाएगी. बिल्कुल. एंड दे विल नेवर से, अगर आप सडनली एब्रप्टली एट द एज ऑफ 15 अगर ये इंट्रोड्यूस करेंगे, दे माइट रेजिस्ट कि Yeah, ये इसमें बिल्कुल कुछ सही. है हाँ. जो हमें फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा. पर जिनके बच्चे अभी बहुत छोटी एज में है और उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खाने के साथ, और Yeah. अगर आपके घर में इनका तड़का लग रहा है, आई थिंक यू आर गिविंग देम अ ब्लेसिंग विच विल वर्क फॉर देम थ्रू आउट देयर लाइफ. ब्यूटिफुल. या सो आई मीन बहुत छोटा सा ही चीज़ था, है ना, कि एवरी डे अगर हम उनको सोने से पहले अगर हम शहद और अदरक और तुलसी देंगे, एंड इट्स लाइक डूएबल. ऐसा ऑफ भी कोर्स नहीं है. यस. मतलब है ना? अगर आप ये लगाएं कि बच्चों को शायद सर्दी खांसी जुकाम हो से बच नहीं होगा जाएंगे. अगर ये Exactly. रेनी सीजन से, जैसे अब रेनी सीजन स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप शुरू कर दें, सर्दियों से पहले शुरू कर दें ये रेजीम. दिस रियली वर्क्स. राइट. एंड एनी सॉर्ट ऑफ लड्डू और समथिंग यू थिंक अगर कुछ बनाकर रखना चाहिए? लड्डू ऑफ कोर्स बना के रखना चाहिए. जैसे कि हमारे घर में कुकीज़ रखी होती हैं, वैसे ही अगर हमारे घर में लड्डू, और लड्डू क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल द गुड एलिमेंट्स. elements, एंड इसमें yes. कोई साइंटिफिक नहीं है. सनफ्लावर ले लो, सेसमे सीड ले लो, आप अपना पपाया के सीड्स ले लो, एंड थोड़ा सा गुड़ डाल लो या जैगरी डाल दो, डेट्स डाल दो. बच्चों को फ्लैक्स सीड्स दे सकते हैं? फ्लैक्सीड यस. अगर आप ये देखिए कि अगर आप 1 चम्मच डाल भी रहे हैं और उसमें आप लड्डू कम से कम 10 बना रहे हैं, तो आपके बच्चे के तो hardly पोर्शन में कुछ कितना थोड़े से, आएगा. yeah. एंड ब्राज़ीलियन नट्स वेरी गुड फॉर सिलेनियम, जो यूजुअली हमारी डाइट्स में ऐसे आता नहीं है. तो Okay. उन सबको मिक्स करके वो ना, जब आप उसकी बनाएंगे पिन्नी सी या लड्डू, वो एक ऑयल पोर्शन की तरह काम करता है, ओह नाइस. और वो उसको सूखने नहीं देता बहुत जल्दी. वो तो और भी अगर बढ़िया आप है, then you ब्राज़ीलियन need नट not को भी know ऐड have- करो, यस, yeah. दैट रियली वर्क्स. Nice. सो ये तो हमेशा आपके घर में 1 हफ्ते का हर संडे को बना के रख दीजिए. कोई टाइम नहीं लगता, बस ये इंग्रेडिएंट्स, योर एनी ऑफ द सीड्स जो भी घर में पड़े हैं, कोई ज़्यादा आप मत करिए. अगर असॉर्टेड सीड्स भी पड़े हैं उनको डालिए. आप साथ में थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, जैगरी डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, और ब्राज़ीलियन नट्स मंगा के रखिए. Right. उन सबको मिक्सी में चर्न करिए. योर सोल्यूशन इज़ रेडी. बस उसको Yeah. अपना शेप दे के एक जार में रख के
रखिए, पूरा हफ्ता यूज़ करिए. राइट. क्या हम ये चीज़ कुकीज़ में भी कर सकते हैं? वाई एम सेइंग दिस बिकॉज आई ऑल्सो वर्क ऑन किड साइकोलॉजी इन दैट सेंस. कई बार ऐसा कुछ बच्चों को दो ना बनाकर लड्डू हेल्दी सके, हम नहीं खाएंगे. Yes, यू नो yes. इट्स तब तुम्हारा एफर्ट कहाँ जाएगा ना, तुम कितना एवरीबडी डजंट नो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे अब उसको करवाना है. राइट. सो व्हाट हैव वर्कड ऑलवेज विद मी इज़ कि जब हम कहते हैं ना बच्चे आप आकर बनाओ, दिस इज़ योर स्टफ, चलो हम डालते हैं, फिर जब वो चीज़ खुद बना लेते हैं ना, इट इज़ लाइक अचीवमेंट फॉर देम. Of course. तो वो सबको भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं. तो कुकीज़ में भी सिमिलर वर्क करता है. Certainly, yes. You can add some oat powder. You can add some almond flour, and you can add some cinnamon in it. Some banana to make the sweet flavor, Yeah. and of course some seeds. Seeds, everything. उनको अच्छी तरह churn करके yeah, पाउडर powder के डाल फॉर्म में दिया. उन सबको ऐड करके अपनी कुकीज़ बेक करिए. या एंड दे आर लाइक हमने कुकीज़ बनाए और Of खुद भी course. खाते हैं और सबको खिलाते हैं, फ्रेंड्स को भी बुलाएंगे, ये देखो, है ना. सो इट्स लाइक वही वाली बात है. सो आई ऑलवेज ट्राई कि जितनी ऐसी हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, मैं इनसे ही बनवाती हूँ. That's so nice. Yeah. सो Sense of achievement, and they would like to eat it always and feel proud. एग्जैक्टली कि हमने बनाया. Yes, एवरीबडी, yes. आप भी खाओ, दादी दादी आप भी लो. Actually. या सो या दैट्स हाउ, बिकॉज जब भी खुद बना के इतनी मेहनत करो, हम नहीं खाएंगे. क्या भाई. And the mother gets all You're like, demotivated. और Yes, irritated हो yes. जाते I हो. think this is a point which we Yeah. should take from you. That get the cooking done from the child. Yeah. जो भी छोटी छोटी चीज़ें, या it's an accomplishment for them. एग्जैक्टली. सो इसमें ना कुछ ऐसे बहुत ही ट्रेंडिंग वर्ड्स चल रहे हैं. सत्तू पाउडर, मोरिंगा पाउडर, करी लीफ पाउडर. टेल मी इफ आई एम मिसिंग समबडी, सम पाउडर, सो समथिंग. सो इसमें ये सारी चीज़ें क्या बच्चों को इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए? करी लीफ पाउडर, जैसे कड़ी पत्ते का पाउडर है, या मोरिंगा लीव्स का पाउडर है. Moringa, yes, is very good, but again, flavoring का है. If your kids can accept it, and it's a very, I would say, a very strong herb. We can't take it on regular basis. वही. So we have to take it in a very small quantity. I would not like to introduce this to my children below 10 years, maybe afterwards, but not on regular basis. Kari patta, yes, it's a great source of calcium. राइट. So what you could also do is कि 4-5 कड़ी पत्ता एक गिलास पानी में सोक करके ओवरनाइट, सुबह उसको हल्का सा उबाल के छान के बस बच्चे को वार्म वाटर पिला दीजिए. That works. एंड कड़ी पत्ता तो हर चीज़ में डल सकता है, चाहे आपकी इडली हो, चाहे आपका वो हर तड़के में डल सकता है. anywhere it can be Yeah, used. yeah. Whatever is natural, Swati, you don't really need to double think about it. एग्जैक्टली. You can innovate and you Yeah. can create things. वही मुझे ये पूछना था कि इतना कुछ अब एकदम से जब नॉलेज भी ओवरलोड हो ये सब जाता है कुछ ना. पहले से था, हमारे किचन्स में था, Yeah. और हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं. आज जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ शायद आप बहुत पहले से यूज़ कर रही हैं, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको कर रहा है, कॉन्शियस माइंड उसको नहीं देख पा रहा, और जब कोई और बताता है तो हम फील करते हैं कि यस, Yes. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. Yeah. बीइंग ह्यूमन, जब तक वो हमको हाईलाइट नहीं होता. बिल्कुल. स्टिमुलस इतना ज़्यादा है ना डेली लाइफ में, और कितनी चीज़ें तुम्हारे बैक ऑफ माइंड चले जाती है, कितनी सामने रह जाती हैं. yes. It's like that. So if you have your grandparents at your place, Yeah. I think you are doing everything right in your kitchen. I बिल्कुल. always say this to my clients I that, you know, know. you come to me and you say, okay, this is this person's approved, this is FDA approved, this is ISSA, FCCA, whatever, all these Yeah. companies approved. And you know what I say? Take approval from your kitchen. Yeah. अंडरस्टैंड दिस कि आज अगर कोई भी चीज़ अप्रूव हो रही है, या कोई भी प्रोडक्ट अगर अप्रूव हो रहा है, वो जिस भी लैब में अप्रूव हो रहा है, उसका बजट कौन दे रहा है? जिसने वो प्रोडक्ट बनाया है, फर्स्टली. सो इट कैन नॉट बी द राइट इन्फॉर्मेशन, इट वुड Yeah. गेट समवेयर. दूसरा, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, बिल्कुल. और कितने टाइम पीरियड के लिए वो कितने होएगा, जो वो उस प्रोडक्ट के बारे अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं 1 साल 2 साल, नॉट मोर देन दैट. सिमिलरली, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ योर किचन. इट हैज़ बीन वर्किंग सिंस सेंचुरीज, राइट? सो देयर इज नो Eternity, yeah. लिमिटेड टाइम Time. कि वो किचन में वो चीज़ बनी है. सेकेंडली, इट हैज़ बीन टेस्टेड ऑन अस, बिल्कुल. so we all know about it. Yeah. Thirdly, it is not being promoted by somebody. Nicely put. I like the analogy. Yeah. So I think whatever has been going on in your kitchen since centuries, it cannot be wrong, because we've been healthy and we have been doing well in our lives. Yeah. Now, because of the undoubtedly. introduction of foreign things,
the packed things that we are Yeah. seeing so many diseases like cancer, BP, diabetes, बिल्कुल. ये सब अराइव हुई हैं जब हमारे किचन्स में थोड़ी सी बाहर की मिलावट शुरू शुरू हुई हुई है. है, बाहर की जो Yes, प्रोसेस्ड yes, एलिमेंट्स आए हैं, yes. बिल्कुल. किचन में जो नहीं होने चाहिए. Yeah, foreign invaders. Actually. Nice, you actually created the whole war scene, no? Cool. So, it's like हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या डेली चेंजेस करने चाहिए वो अपनी किचन से ही हो सकते हैं ना. एंड ये अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया. बट देन नाउ आई वांट टू कम अपॉन टू दैट टॉपिक कि बहुत से बच्चों में जो ग्रोथ है ना वो डिलेड होती है, चाहे वो छोटी एज में होते हैं. तब कहते हैं कि इतनी टेंशन मत लो कि वो बाय द टाइम दिल ग्रो वो वापस से दिल गेन दैट. बहुत से बच्चे हैं वो जो अपनी हाइट भी नहीं गेन कर पा रहे हैं. इन दैट सेंस मतलब अगर हाइट को लेकर चले हम बच्चों की या ग्रोथ को लेकर चले, व्हाट आर द फूड्स और डाइट थिंग्स यू वुड रेकमेंड और एनी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंज यू वुड ऑल्सो रेकमेंड इन सच केस? या वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेरेंट्स की जीन्स ही नहीं मैटर करते आपके बच्चे की हाइट और वेट पे. इट ऑल्सो मैटर्स दैट what the kids are having, what timings they are on, they are really important. Now, the factors which can actually disturb your child's growth, उसकी height और weight, सबसे पहले आ गया skipping of breakfast, जो बहुत ही major है, especially from the age group of 8 onwards बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अपनी करने लग जाते हैं. तो अगर बच्चे अपना ब्रेकफास्ट ही नहीं कर रहे तो आप ग्रोथ हार्मोन को ग्रो ही नहीं करने दे रहे. ओके. एंड अगर आपने अपने बच्चों की डाइट में जंक ज़्यादा इंक्लूड किया हुआ है तो वो आपके ग्रोथ हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं बिकॉज देयर इज मोर ऑफ सोडियम. ओके. एंड इफ़ वी कम टू एक्सेस शुगर, अगर शुगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो बिकॉज ऑफ स्पाइक्स एंड देन गोइंग डाउन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स doesn't take place well. Okay. And of course, no fixed meal timing. रैंडमली खा रहे हैं तो ऑब्वियसली डाइजेशन अच्छा नहीं होता. हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक चलती है जो अप्रिशिएट करती है कि अगर आप एक फिक्स टाइम टेबल रखें और जो उसके हिसाब से जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है उस टाइम पे खाएं इवन फॉर चिल्ड्रन, तो वो खाने की एब्जॉर्प्शन अच्छी होएगी, ग्रोथ हार्मोन्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी होएगी, तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके चाइल्ड पे. एंड लो प्रोटीन डाइट, चाहे वो आपका मसल हो, चाहे वो आपका बोन हो, हाइट हो, हेयर हो, इसका मेन एलिमेंट इज़ प्रोटीन. सो इफ़ द प्रोटीन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द चाइल्ड्स डाइट, ऑफ कोर्स देयर कैन बी अ कॉम्प्रोमाइज. Okay. सो नाउ वी कम टू व्हाट वी आर सपोज टू बी हैविंग सो दैट हमारे बच्चे की ग्रोथ हाइट कॉम्प्रोमाइज ना हो. सबसे पहले इज़ योर कैल्शियम. हाउ? टेक रागी, टेक सेसमे सीड्स, टेक मिल्क, टेक पनीर, टेक योगर्ट, very good sources of calcium. Second is your protein. We all know fish, egg, chicken, then your lentils, your paneer, they all include good amount of protein. Third is your iron, dark green vegetables, and especially with a dash of lemon in it so that the absorption happens well. Fourth is zinc. उसमें आपके seeds and nuts वो आ जाते हैं. और लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ योर वाइटामिन डी विच कम्स फ्रॉम सनलाइट बेस्ट. एंड ऑफ कोर्स द सेकेंड कुड बी मशरूम विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ वाइटामिन डी. Okay. Mushrooms will be vitamin D, Yes, nice. yes. And In fact, sun dried mushrooms. okay. आप मशरूम्स को जब तोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे हम अचार को धूप में रखते हैं वैसे ही मशरूम्स को रखिए तो उससे उसका विटामिन डी कंटेंट ज़्यादा हो जाता है. Okay. Yeah. That was new for me. Interestingly. So that really helps. Nice. And क्या बच्चों को विटामिन डी शॉट्स या विटामिन डी जो एक्सटर्नल होता है वो दे देना चाहिए, स्पेशली अगर आजकल के बच्चे बहुत कम निकलते हैं धूप में? सी अगेन विटामिन डी काफ़ियों की बॉडी में कम होता है. अराउंड 70% लोगों की बॉडी में कम होता है. वाई? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द एब्जॉर्प्शन एजेंट्स दैट आर द फैट्स. Okay. Because these all are fat soluble
nutrients. So it's important that you include desi ghee in your diet, which helps. कई माओं को होता है कि देसी घी नहीं यूज़ करना है क्योंकि हमारे बच्चे मोटे हो जाएंगे, बट बिलीव मी इट्स अ गुड फैट. इसमें जो एलिमेंट है वो आपकी बॉडी खुद क्रिएट नहीं कर पाती, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू कंज्यूम द देसी घी. बट येस, अगर फिर भी डेफिशिएंसी है, देन बाय कंसल्टिंग अ पीडियाट्रिक यू कैन फिक्स योर डोजेज एंड टेक इट अकॉर्डिंगली. मैं वही पूछना चाह रही थी बिकॉज बहुत सारे केसेस में देर इज़ नो एक्सपोजर सनलाइट का ना. स्कूल जाते हैं, वहाँ पे स्पोर्ट्स पीरियड होता है, दैट्स इट. उसके अलावा नहीं होता है. और आजकल जितनी एक्टिविटीज़ हैं, बीट बैडमिंटन एंड एवरीथिंग, कोर्ट्स आर ऑल कवर्ड, इंडोर्स ही रहते हैं. सो दैट्स व्हाई आई वाज क्यूरियस कि हम शायद यहाँ सप्लीमेंट प्रॉब्ली दे सकते हैं. ऑफ कोर्स. सो कमिंग ऑन टू कि हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि मदर्स को क्या करना चाहिए, बट देन कुछ आई एम श्योर मिस्टेक्स भी होंगे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं डेली लाइफ में और हम अवेयर ही नहीं है उस चीज़ को लेकर. सो व्हाट आर दोज 3 कॉमन मिस्टेक्स विच वी एज अ मदर्स थिंक ये हेल्दी है बट एक्चुअली दे आर मिथ्स? बिल्कुल. आई थिंक सबसे पहला, माएँ बच्चों को स्कूल भेजने से पहले एक गिलास दूध पिला देती हैं एंड दे फील कि बस वी हैव डन द राइट जॉब. बट प्लेन मिल्क इज़ नॉट इनफ, बिकॉज में ना तो फिर फाइबर गया, ना प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा गया, और ना ही आयरन, ना कोई और एलिमेंट ज़्यादा गया नहीं. सो नेवर गिव योर चाइल्ड प्लेन मिल्क व्हेन दे आर गोइंग टू स्कूल. Add in something, maybe some almonds or some date or a banana or some oat. Never give plain milk to the child. Right. It doesn't have anything in it. Okay. Right? बच्चा फ्रूट खा के जा रहा है तो इट्स ओके. Yeah, but then always milk में भी add करो, उसको Milk के साथ add फिलिंग हो जाएगा और उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा जाएगा. True. सेकेंड, मदर्स शॉपिंग पे जाती हैं एंड बिस्किट्स खरीदती हैं जहाँ पे उसमें लिखा होता है लो शुगर, मल्टीग्रेन. तो उस चीज़ को देख के वी बाय दोज बिस्किट्स स्टेटिंग देम एज हेल्दी एंड वी गिव इट टू आवर किड्स. लेट्स नॉट डू दैट. Right. लेट्स मेक होम मेड कुकीज़ एज वी हैड डिस्कस्ड. मुरमुरे बना दीजिए थोड़े कड़ी पत्ता डाल के. आजकल तो मुरमुरे आपको बाजरा के, जवार के, सबके रागी मिलते के, राइस के, सबके मिलते हैं. उन सबको मिक्स करके मखाने बना दीजिए. Right. घर में आप बच्चों के लिए चिक्की बना सकती हैं, आप मट्ठी बना सकती हैं. सो रैदर देन गिविंग देम बिस्किट, प्लीज़ add something else, or maybe simple peanuts. They also work really well. Right. And lastly is, as I discussed before, देसी घी. मैंने बहुत सारी माओं को देखा है देसी घी उन्होंने अपने किचन से कट ऑफ कर दिया है ये सोच के कि बच्चा मोटा हो रहा है, नॉट रियलाइजिंग कि बच्चा मोटा हो रहा है क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. इट इज़ नॉट द देसी घी दैट इज़ द कल्परेट, बल्कि देसी घी अगर आप ऐड नहीं करेंगे और बाकी सब एलिमेंट्स ऐड करेंगे तो जो एब्जॉर्प्शन है वो होनी है देसी घी से. Right. और फिर वही नहीं होएगी. बिल्कुल. So, but these are the 3 points, I think. एंड शुगर में आजकल बहुत चल रहा है स्टेविया और monk fruit. तो हाउ मच आर दीज रिकमेंडेड फॉर किड्स? Not for kids. monk fruit और स्टेविया बिल्कुल भी नहीं. Ultimately, they are all chemicals. Ultimately, they are the powder in the form of powder. Understand that. It's a foreign object. ओके. सो अगर वो बोलते हैं कि monk fruit से बना है और स्टेविया प्लांट से बना है, सो Understand ना? Yeah, stevia is made from the leaves. वो leaves green color के थे. See, I'm not saying they're absolutely bad. या Right? But when we're talking about kids, हम जितना उनको natural रख सके उतना अच्छा है. Yeah. क्योंकि जब वो ये सब चीज़ें प्रोसेसिंग होकर आती हैं, go to their factories and see the way they are being made. So yes, there's certain amount of chemicals that are being added. किसी पत्ते को हम जितना भी पीसते वो white powder नहीं बन सकता है. बिल्कुल. Simple logic. या Right? So there's a lot of processing happens and why would we give, हम तब से ये पूरे podcast से बात कर रहे हैं कि let's just go on basics and let's just go on basic food and basic nutrients. So why stevia and why monk fruit? वही आई जस्ट बिकॉज हम कई बार वो कुकीज़ भी बना रहे हैं ना, तो बच्चों में कई बार डेट्स डाल रहे हैं और कभी हम जैगरी डाल रहे हैं. तो क्या ये भी ऑल्टरनेटिव्स काम करते हैं? सो नो फॉर such Not things. for kids. Not I for would kids. not recommend. मेरा ना अभी ऑलमोस्ट लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि मेरे क्वेश्चंस खत्म नहीं होने वाले. आई थिंक वी कैन सिट फॉर होल डे और मैं आपको जाने नहीं दे सकती. बट आई नो आपके भी बच्चे वेट कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं. सो इट्स लाइक recently I met kids endocrinologist. ठीक है ना. So and
डेटा शी शेयर्ड कि बच्चों में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है Yes. ना. एंड द थिंग इज व्हाट आर द सिग्नल्स एज अ पेरेंट एज अ लेमन कैन अंडरस्टैंड कि बच्चे में हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसको बच्चे को डॉक्टर के दिखाना चाहिए. वो सिग्नल्स क्या होंगे सबसे पहले? सिग्नल्स तो आपको फिजिकली ही नज़र आने शुरू हो जाते हैं. द किड्स गेट पिंपल्स, अनवांटेड हेयर ग्रोथ एंड sluggishness, then again delay in periods या heavy flow in periods. This happens. So weight issues, they come up. Majority of the times it is weight gain. Sometimes the weight doesn't really comes up. So these are the few signals which you get because of hormonal imbalance. But I would want this to be understood to everyone कि hormonal imbalance is not a disease. Yes, It is a lifestyle disorder, true that. right? So it is all based because of the lifestyle. We have talked about it. Yeah. Your kid is not going out of the house. Your kid is not active enough. Your kid is not getting natural sunlight. One of the major reasons. Right. उससे ओबेसिटी बढ़ती है. ओबेसिटी से डिजीज़ेस बढ़ती हैं. सेकेंड इज स्क्रीन टाइम. दैट इज़ नॉट मेकिंग देयर बॉडी रिलैक्स. ओवर स्टिमुलेशन. Right. Third is the diet. More of processed food, junk food, introduction of kids are more happy taking packet foods, Yeah. and the influences. If you see, I mean, it was surprising for me. You know, we went to international holiday, and over there on the counter there was a blue chips. I did not know about it, but when my kids saw that, they were already introduced through YouTube videos. They knew exactly what it is. They were so happy that they could see that chip, so they took that, ate it, and they asked me, "Mama, हमारी tongue blue हो गई." Oh. They knew the whole concept of that chips. So it is the social media which is bringing awareness. शायद उनको मैं कहूँगी बनारस के लड्डू नहीं पता, पेठों की जो हमारी पेठे की बर्फी होती है वो वो उनको नहीं नहीं पता पता होएगा, है. because nobody really Puts- promotes them. उसको- But in a foreign country they know कि ये ये blue chips chips वो वाले होते हैं. chips हैं और ये वो काम करते हैं. It is the Yeah, media. it's a good so, work. मतलब एक आइडिया फॉर द इंडियन क्रिएटर्स है ना, yes. कि फैंटेसाइज द इंडियन मिठाई एंड इंडियन थिंग्स And of course हमारी generation healthy हो जाएगी उससे. Exactly. So these are the factors which are actually creating hormonal imbalances, and in fact overexposure. Yeah, undoubtedly. So these are the few reasons why बच्चों के periods जल्दी आ रहे हैं. So खाने में बेसिक रखिए. Yeah. 2 hours घर से बाहर निकालिए उन लोगों को, and बिल्कुल give them sunlight, let them play, let them not get exposed to whatever they're not supposed to be getting exposed in this age. बिल्कुल I think सही. these things mentally, physically, if you take care, and nutrition wise, these 3 things, if you take care, there'll be less of hormonal बिल्कुल imbalances. सही. सो अब ना हमने इतना सारा डिस्कस किया है, तो मुझे एक ना जाते जाते एक वो जो एक टिपिकल मॉम जो कहती है ना, एक मुझे और इजी कर दो चीज़ कि मुझे मील प्लान करना है डे वाइज, मंडे ट्यूसडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे बच्चों का स्कूल होता है जैसे, तो वो टिफ़िन में क्या भेजना चाहिए जिससे रियली उनका जो कहते हैं ना व्हाट देयर ब्रेन नीड्स, वो सारा कुछ कवर हो रहा है, सो दैट दैट मील जो हम पैक करके भेज रहे हैं उसमें सब कुछ है. इफ़ यू कुड डू इट लाइक दैट. Certainly, I think we can provide Monday to Friday, Saturday बच्चों का meal. So maybe the first day you can give them moong dal chilla with some paneer stuffing in it. It works very well for kids. You can give them second पराठा जिसमें आप थोड़ा सा पीनट बटर डालें और थोड़ा सा बनाना डाल के एक डिफरेंट फ्लेवरिंग, थोड़ा मीठा फ्लेवरिंग, पैनकेक्स टाइप्स बन जाएगा जो बच्चे बहुत लाइक करते हैं. थर्ड यू कैन गो फॉर इडली जिसमें आप बीट रूट ऐड कर सकते हैं, कैरेट ऐड कर सकते हैं, मे बी अ रेड कलर एंड मे बी अ ग्रीन कलर फॉर स्पिनच ऐड Right. करके इडली आपकी कलरफुल बन जाएगी. किड्स विल रियली एन्जॉय इट. देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर रोटी टैकोस. रोटी बनाई, उसमें आप अपने राजमा, ड्राइड राजमा डाल सकते हैं, ड्राइड चने डाल सकते हैं, एंड इट विल बी अ नाइस टैको मील फॉर द चिल्ड्रन. लास्ट यू कैन गो फॉर सम टिक्कीज जिसमें यू कैन ऐड paneer, you can add some lentils, you can add some rajmas, some chanas, Yeah. and as a falafel, you can give that. But
understand this, that with these meals you are making sure that your child is taking protein, is taking carb, but you need to add some fiber, and you can add in some cucumber slices or maybe a fruit. So this is a Maybe some nuts, है ना? complete meal. Yes, nuts, some makhanas, and you will be just stress free. If you Yeah. note this down and this is your menu every single day, your kid is taking everything not for the brain itself but for the entire day. body and building up the immunity and a Yeah. growth factor too. ब्यूटीफुल. इससे यार मैं ना सॉरी मैं तंग कर रही हूँ आपको. मेरे को लास्ट एक और क्वेश्चन आ रहा है Yes, दिमाग में. yes. जैसे अब टिक्की है या कुछ है, लोगों को बच्चों को सैंडविचेस अच्छे लगते हैं, ब्रेड्स अच्छी लगती हैं. ब्रेड्स कितनी क्वांटिटी में देनी चाहिए? लाइक वंस इन अ वीक दे सकते हैं आजकल कैसे? तो ब्रेड की इतनी वैरायटी आ गई है दैट यू नो you have sardo breads, you have millet breads, you have sprouts bread, and the best is घर में bread maker ले आओ. या उसमें अपने जो भी आपने फ्लावर डालना है वो डाल के उसमें फ्रेश स्पिनच के लीव्स डाल दो, स्प्राउट्स डाल दो, योर ब्रेड इटसेल्फ उसमें सीड्स डाल दो. इट बिकम्स हेल्दी इटसेल्फ. वाओ. And giving it once a week or maybe twice a week is not bad. Yes, how you are making it, that makes the whole difference, and you can Right. add some hummus on it, some yogurt on it, and Right. it becomes a full-fledged meal which you'll be happy to serve to your child. Nice. An unsponsored one for all bread makers. This is great solution actually. So आपने ना मेरा वो ये वाला लास्ट में एक बत्ती नहीं जगा दी होती है कहते हैं ना बल्ब जगा कि आज ही ऑर्डर करते हैं ब्रेड मेकर. Yeah. एंड इफ यू कुड ऐड सो मेनी थिंग्स एंड दैट टू मुझे मैंने जो ब्रेड मेकर्स जो मेरे जस्ट लाइक माई मॉम इज़ यूजिंग एंड माई फ्रेंड्स आर यूजिंग, आई हैव नॉट यूज्ड एज येट. तो अभी तक कुछ लोग यीस्ट डालते हैं, तो यीस्ट माइनस भी हो पा रही है अब अगर आप फ्रेश उसी टाइम उसको यूज कर रहे हो. यूज कर रहे हैं, अदरवाइज यीस्ट कितनी you can a little bit. Yes, you can. It's not an Yeah, issue. yeah. कूल. ये तो और And in fact, if you talk about certain people who are staying abroad, like most of my clients, I did introduce this making bread on their own. So it has become a family regime. Every Sunday, a sourdough bread is being baked yeah at their place, and they're all consuming become a it. part of an activity to Yes, be played with yes, kids. yes. Let's make a sourdough bread. Of course. Yeah. And in winters, it works brilliantly. Because Yeah, घर में खराब ही नहीं होती है. जैसे मेरे घर में आई हैव अ स्मॉल किचन गार्डन, सो दैट छोटे छोटे स्पिनच के लीव्स होते Yeah. हैं. आई डू दैट, पुट इट इन माई डो एंड वी बेक इट, एंड इट्स सो फ्रेश. इवन सनफ्लावर सीड्स आप वो डालो, Yeah. बीटरूट को आप डाल Grate दीजिए. करके. एज वी डिस्कस जिंजर, Yeah. थोड़ा सा अगर आप जिंजर डाल दें, बनाना डाल दें, एप्पल डाल दें, you can just experiment in anything. Everything. Yeah. If you're consuming fresh breads, I think you can Yeah. just make it a Sunday regime and enjoy it. I think it's good for us as well. वो जो टी के साथ एक अच्छा मसाला चाय केक होता है, वैसे तो मसाला चाय ब्रेड बना सकते हो. Certainly, yeah. Nice. So it's interesting. वो जाते जाते फिर मैंने कहा एक और चीज़ let's extract. So again, I have thanked you. Again, I would say thank you, and it was so much fun, honestly. Same here. Yeah.